Hello class, today we are going to discuss about Raoult's law in the chapter solution. So what is a Raoult's law? Before that I had discussed you what is vapor pressure in the previous Zoom classes, but once again in this video lecture I also like to introduce what is vapor pressure. See this one. Suppose that we have taken a container and some liquid is filled in this container. Suppose this is the liquid. All the liquids are having some vapors at any given temperature. हर लिक्विड की कुछ ना कुछ वेपर्स जरूर होती हैं. सो अगर हम इसको कवर कर देते हैं बेल जार से, जैसे बेल जार नथिंग बट अ ग्लास शेप जार which is having shape like bell. So liquid will have some vapor molecules like this. They are moving upwards. Okay. Now they are applying the pressure on the wall. Okay. These are the vapor molecules. And they are applying vapor pressure on the wall. Okay. So the pressure exerted by the vapor molecule, that is known as vapor pressure. जो pressure vapor molecule apply करते हैं, that is called vapor pressure. Pressure applied by vapor molecule is known as vapor pressure. Pressure applied by vapor molecule. Okay. That is called vapor pressure. A pure component always has its own vapor pressure. Vapor pressure of a pure component. Why I am talking about pure component? मैं pure component के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? Because हम जनरली स्टडी कर रहे हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिनोट किया जाता है हमेशा P नॉट से. प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर डिनोट किया जाता है P नॉट से. This is the vapor pressure of pure component. Pure component usually हम इसकी जगह पर एक और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. In place of pure component we can also call it vapor pressure of pure solvent. Okay, if any given pressure is having not symbol on it, it means we are talking about the vapor pressure of that substance in the pure state. In pure state, a substance will have different vapor pressure, and in the mixed state or in the solution, a substance will definitely have different vapor pressure. देखो सिंपल एग्जांपल देते हैं. अगर आपसे कोई काम अकेले करने को कहा जाए, सपोज दैट पढ़ने को कहा जाए, आपके पढ़ने की स्पीड अकेले अलग होगी. अगर यही चीज हम आपके दोस्त के साथ आपसे कहते हैं कि आप पढ़िए, तो आपके पढ़ने की स्पीड कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ फ्रेंडशिप. सो जो राउल्ट लॉ की हम बात करेंगे, तो राउल्ट लॉ जो होगा वो वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का बताएगा सॉल्यूशन में, कि सॉल्यूशन में अगर एक या उससे ज्यादा कंपोनेंट हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट वी विल सी इन दी राउल्ट्स लॉ. Here we go for Raoult's law. Raoult's law is about a solution which is containing more than one component, of course. So this is a solution. It is having two component A and component B. There are two component of this solution, A plus B. दो component हैं. तो Raoult law कहता है that partial vapor pressure. Why I am using this word partial vapor pressure? Usually हम कह सकते हैं vapor pressure. ठीक है, तो क्यों कह रहे हैं partial? Because इसमें जो vapor pressure होगा वो कंपोनेंट A की वजह से अकेला नहीं होगा, और ना ही कंपोनेंट B की वजह से होगा. जो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों की वजह से होगा. इसलिए अगर हम किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज partial vapor pressure. So according to the Raoult's law, partial vapor pressure, according to Raoult's law,
RL, I am writing in short. Okay, according to Raoult's law, partial vapor pressure of a component, suppose we are talking about component A here. Okay, so partial vapor pressure of component A will be PA. Okay, and according to law, this PA will directly proportional to the mole fraction of component A. Okay, so this is the Raoult's law. Raoult's law says that partial vapor pressure of a component is directly proportional to its mole fraction. This statement is known as Raoult's law. किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही स्टेटमेंट को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो PA इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से हटाएंगे ये प्रोपोर्शनल का साइन, तो हमें मिलेगा कांस्टेंट P नॉट A इनटू chi A. This letter is called chi, where we can tell you the PA is what? Partial vapor pressure of A. This is partial vapor pressure of component A, and P naught A is vapor pressure of component A in pure state. Component A in pure state. Okay? मतलब जब A सॉल्वेंट अकेला है या A बिल्कुल अकेला है, तब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? That will be called P naught A. Got it? In pure state. Okay, so henceforth this equation will become that PA will be equal to P naught A into chi A, and similarly what we have PB. This is what? Vapor pressure of component B. Vapor pressure of component B. Okay, so in this case PB will be equal to what? P naught B into chi B. P naught B into chi B, where P naught B is equal to what? P naught B in this case will be vapor pressure of component B in pure state. Okay, so we have got two equations. First one is this, PA is equal to P naught A into chi A, and the second one is PB is equal to P naught B into chi B. Now we will apply Dalton's law of partial pressure. According to Dalton's law of partial pressure, according to Dalton's law of partial pressure, Dalton's, क्या होता है Dalton's law of partial pressure? That total pressure is the sum of the partial pressure. Total pressure of a system is always the sum of partial pressure. So this is the Dalton's law of partial pressure. Since A and B are giving us a solution, so here we can say that PS, where PS is called vapor pressure of solution. Vapor pressure of solution. Okay, so PS will be equal to what? PA plus PB. This will be called PA plus PB. So we will have here PS is equals to P naught A into chi A plus P naught B into chi B. Okay, these are the P naught के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है. So we will have this equation, total vapor pressure of the solution. This is the P naught A, this is the PA, and this is the PB. So इस फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, आपको कंपोनेंट दे देगा, उसकी क्वांटिटी दे देगा यानी वेट दे देगा, फिर आपसे मोल फ्रैक्शन उसमें कैलकुलेट कराते हैं. मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कराते हैं, प्रेशर दे दिया तो टोटल प्रेशर निकलवा लेंगे. टोटल प्रेशर देके आपसे PA, P नॉट A, P नॉट B की वैल्यू लगा देंगे. इस फॉर्मूले में एक छोटी सी ट्रिक बहुत काम आती है, आप याद रखें, ऑलवेज इस चीज का ध्यान रखें, that chi A plus chi B is equals to 1. अब इससे क्या हेल्प मिलेगी? इससे भी हेल्प मिलेगी कि अगर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है हमारे पास, चाहे चाहे A हो या चाहे B हो, यानी एक अगर हमारे पास किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है तो हम कैसे निकाल लेंगे? चाहे A निकालना है तो चाहे A इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस चाहे B. ओके, अगर चाहे B निकालना है तो क्या जाएगा?
1 माइनस चाई ए। ओके, नाउ यू गॉट इट। ठीक है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा व्हेन, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों, when both component are volatile, both components are volatile। ओके, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होने चाहिए इसमें, तभी हमें पार्शियल पेपर प्रेशर ऑफ ए मालूम चलेगा, तभी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मालूम चलेगा, तब हम टोटल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकेंगे। वोलेटाइल का मतलब सिंपल है, आप जानते हैं जो इवेपोरेट होता है दैट इज वोलेटाइल। इवेपोरेट होगा, वेपर मॉलिक्यूल बनेंगे, तभी वेपर प्रेशर भी होगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करें या नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे शुगर है, शुगर वोलेटाइल नहीं होती, सॉल्ट वोलेटाइल नहीं होता, यूरिया वोलेटाइल नहीं होता, तो इनका वेपर प्रेशर नहीं होता। इंस्टेड ऑफ देम पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, बेंजीन है, अल्कोहल है, दीज आर ऑल वोलेटाइल सब्सटेंसेस, तो इनका वेपर प्रेशर होता है। अब अगर हम कहते हैं कि हमारा एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो क्या होगा? सपोज हमने मान लिया लेट कंपोनेंट बी इज नॉन वोलेटाइल। कंपोनेंट बी क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल हो गया। ओके, कंपोनेंट बी को हमने नॉन वोलेटाइल मान लिया। अगर कंपोनेंट बी नॉन वोलेटाइल है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर P नॉट V इक्वल टू व्हाट? 0। बिल्कुल, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर होगा नहीं, नॉन वोलेटाइल है। सो इन दैट केस व्हाट वी हैव? वी हैड दिस PS is equal to P naught A into chi A plus P naught B into chi B। अब कंपोनेंट B तो क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल। कंपोनेंट B नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा? P naught B की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर? P naught B की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पर? 0। तो अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी? We'll have this equation PS is equals to P naught A into chi A plus 0। We have PS is equal to P naught A into chi A। ओके, अब हम आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमने मोल फ्रैक्शन वाले टाइम डिस्कस किया था, that chi A plus chi B always equals to 1, and in that case chi A is equals to क्या हो जाएगा? 1 minus chi B। ओके, 1 minus chi B। सो हम ये वैल्यू रख देते हैं, PS is equals to P naught A into 1 minus chi B। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, क्लियर? तो हमने लिख दिया PS is equal to P naught A minus P naught A into chi B। क्लियर? ओके, मल्टीप्लाई। नाउ हम क्या करेंगे? हम इस टर्म को भेज देंगे इस तरफ, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमने इस टर्म को P नॉट A वाले टर्म को भेज दिया है इस तरफ हम ले आए इस टर्म को, तो क्या होगा? देखिए, we'll get P नॉट A is equals to PS plus P नॉट A इंटू chi B। ये मिल गया हमें। अब हम आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो क्या होगा? हम यहाँ से PS को इस तरफ फिर से भेज देंगे, तो हमें मिल जाएगा P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू chi A। तो हम यहाँ से P नॉट A इंटू chi B, तो chi B की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। chi B इज इक्वल टू हमें मिलेगा P नॉट A माइनस PS ओवर P नॉट A, दैट इज ओके। ठीक है, ये हमें मिल गया। chi B को हमने मान लिया था क्या? सॉल्यूट मान लिया था, जैसा कि मैं शुरू से बोलता हूं, कंपोनेंट A क्या है? सॉल्वेंट है, कंपोनेंट B क्या है? सॉल्यूट है। तो ये एक इक्वेशन हमें यहां पर मिल गई, दैट chi B is equal to P नॉट A minus PS upon P नॉट A। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, ये जो टर्म है P नॉट A minus PS over P नॉट A, that is called relative lowering in vapor pressure, relative lowering in
वेपर प्रेशर, ठीक है। इस टर्म को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी अगर सॉल्यूशन में कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और इस रिडक्शन को ही हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ऐसा क्यों होता है उसका सिंपल सा रीजन मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये कंपोनेंट, ये वेसल है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। अभी हम यहां पर हमने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, तो प्योर सॉल्वेंट, अब सरफेस पर केवल किसके पार्टिकल है? प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल है। तो प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल अगर सरफेस पे होंगे तो वेपर प्रेशर भी केवल उन्हीं की वजह से लगेगा। क्लियर? अगर आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्यूट तो पूरे में डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब सरफेस पर क्या हो जाएगा? अब सरफेस पर क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ गए। ये जो ब्लैक ब्लैक कर दी ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल है। तो अब क्या होगा? वेपर प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ये वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, ये आपका राउट्स लॉ हो गया। हमारे पास ये इक्वेशन थी दैट चाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। क्लियर? यहां पर चाई बी है तो चाई बी को हम क्या लिख सकते हैं? चाई बी को लिखा जा सकता है नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। ओके, ये होता है। याद रहे ये जो केस मैं आपको समझाने जा रहा हूं दैट इज फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अगर बहुत डाइल्यूट है तो उसके लिए है डाइल्यूट सॉल्यूशन। बिना डाइल्यूट सॉल्यूशन के भी हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है इन सम न्यूमेरिकल्स, बट बेसिकली दिस इज फॉर द डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन का सिंपल सी मतलब यही हुआ दैट इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी वेरी लेस। ठीक है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाई बी की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हमें नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला पता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बट उससे पहले हम यहां पर एक चीज बता दें कि अगर किसी भी वैल्यू में जो कि 1 से बहुत कम है, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने कहा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस है, यहां पे सॉल्यूट कंपोनेंट बी है। ठीक है, तो इन दैट केस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 इवन। ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 से बहुत जो वैल्यू बहुत कम है उसको जोड़ दें या लेस कर दें तो यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 से कम वैल्यू को यहां पर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां पर हम क्या मान लेते हैं? एनबी को मान लेते हैं नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल मानते हैं और यहां से हटा देते हैं। तो हमारे पास जो आगे इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? ये आगे इक्वेशन मिलेगी एनबी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए। ये इक्वेशन हमें मिल गई यहां पर। अब हम एन बी की वैल्यू रख देते हैं। एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू ए इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? P नॉट A माइनस पी एस ओवर P नॉट A। ये हो गई। अब यहां पर मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म ऊपर जाएगा इसके साथ और ये टर्म जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी व्हाट? डब्ल्यू बी इंटू एम ए ओवर डब्ल्यू ए इंटू एम बी is equals to P naught A minus PS over P naught A। अब ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई है यहां पर।
हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं राउंड्स लॉ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम सीखेंगे आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रीजन ऑफ आइडियलिटी, नॉन आइडियलिटी, डेविएशन, बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन, और उसमें का न्यूमेरिकल का भी हम सॉल्यूशन बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।